Praise God. Praise God. Let us enthrone him with our praises, because God is holy. He is holy. Purity is his, and he wants to see everyone holy. Are we holy? No matter how hard we try, we can never be holy. We can never be righteous, but it is his grace, his abounding grace, that he has prepared a way so that we can reach him and see his holiness. The holy eyes that saw God were those of Adam and Eve. But when we sinned, we were separated from Abba Father. We were separated from him. And when sin separates us, we cannot see him. We cannot hear him. Let us praise him and praise him and praise him and lift him up with our praises and exalt him, because honor belongs to him. Glory belongs to him. But he loved us so much that he sent his only begotten Son. He clothed in humility. These dirty clothes he wore. He became lowly. He humbled himself. He humbled himself to die on the cross and be ridiculed. Shall we not praise him? Shall we not worship our Father? Because if we like worship, our God is the one who definitely deserves to be praised and worshiped. I was in praise this morning, and since morning, the anointing has been tremendous. It has been tremendous. And I could not sit, and therefore I'm standing, because he's holy. He's holy. 24/7, the 24 elders are standing in his presence saying, holy, holy, holy. That is all their job. The job description of the 24 elders is holy, holy, holy. He's Yahweh. He's our Father who loved us and loves us. But he cannot see sin. But when we confess, he puts the sin behind his back so that we can call him holy. When he cleanses our lips and our mouths, and we can say, worthy is the Lamb. No lamb on earth can be that worthy to clean us forever. But it is our choice whether we want to fall into sin again or not. So let's praise him, lift him up in praises and enthrone him. Enthrone him in every language. In every language, somebody is praising God and it is making him happy. And when he is elated, when he's joyful, he sits on the throne and he commands the angels to fight for us. Yes, there's a spiritual world around us which man cannot see. But when God allows the spiritual eyes to be opened, we can see. Who wants to see? Who wants to see? Then you need to be holy. And with your righteousness, you cannot attain that holiness. If you're seeing a spiritual world without the acceptance of Jesus, that's a dark world, because Satan can appear as this angel of light. And without Jesus, you cannot fight him. You cannot fight him. He's holy. Kadus, kadus, kadus. Oh, he's so holy. Oh, he's so holy. He is holy. Oh, every language will say he's holy. There was one language, the language of the heart in the Garden of Eden. Oh, and that was love. That is what he desires us to love each other. In every language, love our brethren and love him most of all.
Fear him. Because we love the Father, but then we don't fear him and we sin. That is not sin. Let us not sin. Let us keep the 10 commandments. And above all, the 2 commandments that Jesus gave. Thou shalt love the Lord thy God. Let us love him to the extent that we are bound to obey him. And we do not obey him out of fear, but out of love, that we will lose him. We will lose. We will lose that place from where we have fallen. We are not fallen angels. We are fallen humans. Oh, yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Abba Father. Thank you for your son, Jesus. We are not fallen angels. We are fallen human beings, and you picked us up. And Jesus says, take up my yoke. It's light. Why don't you take up his yoke? Those who are suffering, please take up his yoke. It's light. It is light. It is very light. But only after you've suffered in the flesh, then it becomes light. Because without suffering, there is no gift. In this world, there is no gift without suffering. Even a mother gets the most precious gift after suffering. After suffering. Men, get ready. If you want to see God, get ready. Kadus. He is coming. He's coming. Can't you hear him? He's coming. Oh, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. And every knee shall bow. Every knee shall bow. And every tongue will confess. Are we confessing? He's holy. He's holy. He's holy. He is holy. Kadus. 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 Kadosh. Yes. He's so holy. He's so holy. Let us enthrone him with our praises on this Sabbath day. As the Jews around the world celebrate Sabbath, that's the 7th day. But they do not know their Messiah, who overcame Satan. God made 7th day perfect, and Satan destroyed that perfection. But thank God that Jesus destroyed the power of Satan on the 8th day. And he rose again from the dead on the 3rd day, and it was a Sunday. The Son of God rose on a Sunday to make our day beautiful, to make our day beautiful, so that we can say, this is the day that the Lord has made, and I will be glad and rejoice in it. Are we rejoicing? Are we rejoicing just in good times and being merry? Or are we rejoicing in sickness and in health? Both. Are we rejoicing in the storms of our lives? Are we saying, thank you, Jesus, for what you did? My suffering is nothing compared to your suffering. What are we doing? Let us look at our own selves. Let us not look here and there. Let us be the horse in a race who's put flaps on the side so that he doesn't see on any side, and he's focused because he wants to attain that target. Then the target is reaching the holiness of God, which we cannot attain by our own selves. By washing, by cleaning, by bowing, we cannot do it. He's tried us for 4,000 years. He's tried us for 4,000 years, and that's plenty. We will not live for 4,000 years. No man lives for that long. Even Adam didn't live for 1,000 years. But the scripture says a day is equal to 1,000 days, and 1,000 is like a wink in the night. Let us praise him even in our dreams, because what we do and what we think, our dreams are enveloped by that.
Let us talk to him and praise him in our dreams as well. Because 1,000 years is like a wink in the night. Oh, thank you, Abba Father. Thank you. You are holy. Thank you for this presence, because you have said where 2 or 3 shall gather together in my name, I will be there. And you are here. And you have been here. You have been here in this world, desiring to inhabit the altar of every heart since the veil was torn. But we do not allow you, because we want to make ourselves the king and enthrone our hearts. I give you this seat, Jesus. Be the king, the ruler of my heart, in my coming, in my going. Let not wisdom envelope me such that I lose the understanding of you, because understanding is much more important. Understanding of the Holy One. And that understanding tells me to praise him in every time. Praise him. Because when you are done with testing, and when your storm has raged and beaten you and bruised you, and you have said, no, it is Jesus. And if you do not look away, and if you look away from Jesus, you will sink like Peter. So keep your eyes focused on Jesus. Hey, look not here nor there, because the days are the days of Noah. These days are the days of Noah. People will be given in marriage. People will be making themselves merry. And the Son of Man shall come. I'm glad I will not be here, because whether I die or I'm raptured, I will be with Jesus. The most holy, sweet name that gives my soul such peace that no man can give, and no man can take that joy out of my heart. Is he giving you that joy? Is he giving you that joy that no matter what happens in your life, you say, Amen, so be it, Emona, and I will rejoice like Paul rejoiced in a prison. When he wrote the letter of Philippians, he was in the prison. And he says in chapter 4 and verse 4, he says, rejoice. And again, I say rejoice. So we are rejoicing, and we have a worshiper from Lahore who loves to praise God, whose refuge is Jesus. And I request him to come and praise and honor him with your voice, with this instrument that God has given you the talent, the guitar. Yes, Father God, I thank you for this worshiper, his life, Father God, his beautiful heart and the desire to serve you and you alone. As he leaves behind the world, Father God, and he's in this race to be the winner, Father God. He's more than a conqueror in Jesus' name. Amen. 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 डॉक्टर साहब, मैं और रिबेका भी गाना चाहते हैं, अगर हमें टाइम दें। जी जरूर। हनी पहले करेंगे, उसके बाद आप लोग डेफिनेटली। आपको आज परस्तिश का दिन है, आज कोई मैसेज नहीं है। हाँ जी, और हमने जो ज्वाइन करता जाएगा वो परस्तिश करे। सुबह से मैं अपने भाई के साथ परस्तिश में थी, वो कराची में उनकी होती है मीटिंग, और 12:30 बजे, और हमारे वो अर्ली आवर्स होते हैं, तो मैं उसमें परस्तिश में थी। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ अनॉइंटिंग, एंड उसी परस्तिश की रूम में अभी मैं एंटर हुई हूँ, और साथ में अभी हम पास्टर सुनील को लेंगे, हु इज अ पास्टर एंड अ वर्शिपर, एंड ही स्टेज in his room separately since morning, because every Saturday he has a meeting at 11 o'clock. So and he's given me time to come collectively and praise and bring praises to the Father and enthrone him with our praises. Praise God. Praise God. And the world, every knee shall bow. You see, these flags, all those who are not submitting to the will of the Father, they will, by hook or by crook, they will
He will, because he is in control. He's always been in control. He just gives us freedom to do our will and test what it feels like to do our will. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, glory to God. I would like to sing the Psalm 145. Sure. Meherban, Meherban, Meherban. Sure. Because as we all are here to praise Him, so we will sing Psalm 145. Oh, glory to God. रहमो दावत के है कमाल, भले आई करदा सबनाना, सब खल्क दोस्तो है निहाल, मेहरबान मेहरबान मेहरबान. Let's sing, everyone. मेहरबान मेहरबान मेहरबान, मोदी मांगते सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान. रहमो दावत के है कमाल, भले आई करदा सबनाना, सब का दोस्तों है निहाल, मेहरबान मेहरबान मेहरबान. नहाए तेरी खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान. सब कारिगरियां है खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान. Oh, glory to God. पाक लोग जो तेरे हैं तमाम, ओ कहते लेके तेरा नाम. So if we are in the blood of Jesus, if we are under the blood of Jesus, that means we are holy. And it is important for us to say, Meherban, Meherban, Meherban. Thank you, Jesus. We have to say this. We have to say this. पाक लो जो तेरे हैं तमाम, वो कहते लेके तेरा नाम, के तू बारिश बना, मेहरबान मेहरबान मेहरबान. यार बादशाही तेरी थी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान. हमेशा कर रहेगी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान. सब लोग कानून में दस्ते चाह, राजवीर कर रहेगा, सब काल करते यहोवा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान. नहाए तेरी खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान. So बेशक जब हम उसकी हजूरी में झुकते हैं, when we surrender ourselves to Him, trust me, उसकी उन तमाम तरह नेमतों पर, उसकी तमाम तरह बरकतों पर खुद ब खुद हमारा ध्यान जाता है, और हम कहते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र. तेरा ना शुक्र, चाहते हुए हम कहते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र. तेरा शुक्र. हमारा कमजोर है, लेकिन हमारा रूह हमें बताता है, हमें गिनवाता है वो सारी बरकतें, वो सारी रहमतें, वो सारा फजल जो वो हमसे करता है. Yes. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah.
अंकल सॉरी आपको म्यूट किया था क्योंकि जब सब गाएं तो जूम पे आवाज वो क्लियर नहीं आती, तो दैट इज वाई मैंने अपना भी म्यूट किया था, क्योंकि जब सिंगिंग होती है तो फिर एक ही जब गाए तो उसकी आवाज अच्छी से सबको आती है। तो जब आप गाएंगे हम लोग अपने आप को म्यूट करेंगे। बट हनी अभी कंटिन्यू करें। लेट्स एंथ्रोन हिम, कंटिन्यू टू एंथ्रोन हिम। Constantly there's praises, constantly there is praises that God loves, because that is his will. His will is being Oh, glory to God. honored. It is his will that is being followed in the heaven right now. The fallen angels are not there, that they will not listen to to our Father. The angels and the 24 elders are saying, Let's holy, say, holy, let's holy. say everyone. Let's praise him. सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, फिर से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा, से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, let's sing everyone. Hallelujah means praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And let's sing everyone. सभी पे जीवन दिया और मोरे भी बहाया, सभी पे जीवन दिया और मोरे भी बहाया, गुनाहों को मिटा के पाप करके नजाती दे दी है, गुनाहों को मिटा। जितनी बार भी इकरार किया जाए वो कम है, क्योंकि उसने जान की हमारी खातिर। वो जो कील उसके हाथों पर लगे वो हमारे गुनाहों की वजह से, जो सर पे कांटों का ताज रखा गया वो हमारे गुनाहों की वजह से, वो जो नेजा उसकी पस्ती में लगा वो हमारे गुनाहों की वजह से था। लेकिन उसने हमारे गुनाह खुद पर किए, उसने हमारी नजात को अपने खून से खरीद लिया ताकि हम आजादी से कह सकें हालेलुया तारीफ करेंगे, क्योंकि गुनाह के साथ हम खुदावंद की हज़ूरी में जाके गा नहीं सकते थे, ना कह सकते थे, ना उसके तख्त के सामने जा सकते थे। लेकिन उसने अपने लहू से खरीद के हमें आजादी दी कि हम उसके तख्त के सामने खड़े होके कह सकें हालेलुया 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 हालेलुया, मुंतज़िर मैं तेरा और देखता तेरी राह, मुंतज़िर मैं तेरा और देखता तेरी राह, जा जा यीशु राजा साथ ले जा, आजा आजा यीशु राजा साथ ले जा। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Halle means praise. Hallelujah. Yahweh, Yeshua. That is the name of our Father, Yahweh. And what did he name his son? Yeshua. And in दोनों अल्फाजों में आपकी जुबान
किसी भी मुंह के हिस्से को टच नहीं करती और एयर डायरेक्टली अंदर बाहर हो सकती है, याहवे, Yeshua, because he breathed into the nostrils of breath, the breath of life. I have breathed into the nostrils and mouths of babies many times who were delivered and were not breathing. That's the very breath in our lungs. But Adam was the loved one who felt the breath of God on his nose. On his nose. Eve did not feel the breath of God. Adam did. And Adam was in authority, and he did not submit to authority. And today, all Adams have been given authority over women, but not to bruise them, not to make them servants, but both to serve in the kingdom of heaven. And we have a beautiful couple who's serving the Father and who's praising Jesus with their whole heart. And his name is Pastor Sunil Joshua and his wife, Pastor Kezia. Welcome, Pastor Sunil, as he's a worshiper as well. And he's been in submission to the will of the Father. He has a serving heart, the heart of a servant. We are not to make our spouses servants, but we ought to have a serving heart that both of us serve each other, and together we serve the Lord. Together we serve the Lord, and they are together serving the Lord by praising. The wife is a beautiful worshiper, not just the voice, but with the heart as well, because we have many gospel singers in the world, but whose heart is beautiful, that person becomes a worshiper. So let's welcome Pastor Sunil. Welcome to Stars of David. Thank you for giving time to us, and I know that you are in prayer since morning, and that is what the message was in my brother's meeting in Karachi, which I attended, and I was in prayer, and he was talking about a prayer for life. And what is the will of God in our lives? हमें समझ नहीं आता हमारी जिंदगी में हम क्या करें, हम खुदा की मर्जी क्या है. सबसे पहले the will of God in our lives is to pray. हम चर्च पहुंच जाते हैं, हम दुआ नहीं की होती, हमें जब कोई हमें चीज मांगते मिलती नहीं, और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमें क्यों नहीं मिल रही. बिकॉज अ प्रेयरलेस लाइफ इज अ सिंफुल लाइफ. जब हम दुआ नहीं करते तो हम गुनाह कर रहे होते हैं, चाहे हम जितना भी पाकीज़ा हो, हम जितने अच्छे काम कर रहे हो, हम चैरिटी कर रहे हो, हम जो कुछ भी कर रहे हो जो कलाम में लिखा है. लेकिन पहला सैमुएल उसके 15 बाब में लिखा है कि अगर मैं अगर दुआ नहीं करता तो मैं गुनाह करता हूं. एंड वी आर सपोज टू प्रे अनसीजिंग. सीज हम कब करते हैं? जब हमारी आंख हमेशा के लिए बंद हो जाती है. जब हमारी आंख हमेशा के लिए बंद हो जाती है तो हम सीज कर जाते हैं. तो उसने कहा है कि सीज ना होने तक, आंख हमारी बंद ना हो, हमें आंखें जब तक हमारी खुली हैं और जब हमारी बंद होती हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर भी अगर हमने दुआ की हुई है, हमने परस्तिश में टाइम गुजारा है, तो हमारे ख्वाब भी, हमें नाइटमेयर्स नहीं आएंगे, हमें ड्रीम्स आएंगी, रोया आएंगी, और वो जल्द आने वाला है, वो आएगी और वो आ रहा है. पास्टर सुनील, सताइश करें, हम सब मिलके सताइश करें. ये वेलकम जो उसको हमने देना है बड़ा अजीम वेलकम होगा, क्योंकि हमने बादलों में उसका इस्तकबाल करना है, हमने जमीन पे नहीं करना. तो हमें जमीन पे उसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस आवाजों से नहीं होती, दिल से होती है. दिल की प्रैक्टिस करें. हम सब दिल की प्रैक्टिस करें, दिल से उसकी परस्तिश करने की प्रैक्टिस करें. मेरी अच्छी आवाज नहीं है, लेकिन जिनकी अच्छी आवाज है वो अपनी आवाजों का नजराना पेश करते हैं. शुक्र है खुदावंद.
रूहे पाक खुदावंद तू आ, तेरा बर चाहे या रूहे पाक खुदावंद तू आ, बाप के रूहे यसू हमें अग्नि से अपने जला, हालेलुया 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 हालेलुया। बाप के रूहे यसू हमें यसू की मानद बना, बाप के रूहे यसू हमें अग्नि से अपनी जला, हालेलुया 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 हालेलुया। Holy, 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 the Lord God Almighty, who was and is to come. He's coming. He's coming. People, I'm telling you, I'm seeing him. He's coming. He is coming. तैयारी पकड़े, दुनिया के काम यही रह जाएंगे, यही रह जाएंगे। क्या आप रहना चाहते हैं? मैं नहीं रहना चाहती। I'm tired of this world. I'm tired. Yahweh, 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 Yeshua, Yeshua. Hallelujah, Hallelujah. Yeshua. हिकमत मुकाशिफा तू दे और दानाई भी दे, हिकमत मुकाशिफा तू दे और
दानाई भी दे, रूह से हो प्रस्तिश यार, सच्चाई तू दे। हिकमत मुकाशफा तू दे, और दानाई भी दे, रूह से हो प्रस्तिश यार, सच्चाई भी दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरी सिताइश करूं। 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 जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरी सिताइश। बहने लगे तेरे रूह का मसा, बहने लगे तेरे रूह का मसा। मुझको भी छू मेरे यीशु राजा, मुझको भी छू मेरे यीशु राजा। दिल की धड़कन है तू, मेरा तन मन है तू। दिल की धड़कन है तू, मेरा तन मन है तू। हाँ, जब तक मैं जिंदा, हो मैं तेरी पूजा करूं, तेरी सिताइश। जब तक मैं जिंदा रहूं, यीशु तेरी सिताइश करूं। जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरी सिताइश करूं।
Mighty in the battle. Yes, you we worship you, Lord. जंग में जोरावर You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Because worthy is the Lamb. Yes, worthy is the Lamb. And you are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरे सिवा दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ जो मुझको शिफा से
तू अपनी वफा मुझको शिफा से, तू अपनी वफा भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से भर मुझको मसा से, यीशु की वफा। तोड़ सारे बंधन मेरे खुदा, तू तोड़ सारे ये बंधन मेरे खुदा, तू We are nothing with you, Lord, Holy Spirit, King of the universe, Lord God Almighty. We praise you and we worship you. आप सा कोई नहीं है खुदावंद, आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है खुदावंद जो आप सा हो। यीशुआ तुझ सा है कोई नहीं, यीशुआ तुझ सा है कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं है खुदावंद। We praise you and we worship you only. We worship you only. तू जो था और जो है और जो आने वाला है। We bless your name, Lord. We bless your name. The name of Yeshua is higher than any other name. Any other name. Yes, your name is higher, higher, higher than any other name. Yes, than any other name. Your name is higher, higher, higher than any other name, than any other name. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name we ask. Amen, 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 amen. God bless you, Stars of David. God bless you all. God bless you. खुदा आपको बरकत दे. All of us, we are, जितने लोग हम यहाँ पे हैं, and I can assure you we have been blessed by the presence of God. We have been blessed. Amen, amen, amen. God bless you. God bless you all. आपकी आवाज नहीं आ रही बाबू जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। Sorry. Thank you so much, Pastor Sunil, and your wife, Pastor Kezia. Thank you so much. You have your own meeting today, and I thank you that you take out time to be here as we minister together. Because a room में ये मैं बहुत ज़्यादा feel कर रही हूँ that we need to unite. We need to unite as a force. हम अपने अपने राई के दानों जो को लेके जो है वो काम कर रहे हैं अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज में, और वो मस्टर्ड सीड है और उसके जरिए हम पहाड़ गिरा रहे हैं, लोगों की जिंदगियों में काम हो रहा है। लेकिन मुझे जो रूह में दिखाई देता है कि हम अगर अपने अपने राई के दानों को हम इकट्ठा करें, जैसे कि आज हम इकट्ठे हुए हैं, तो बंधन और टूटेंगे। अभी टूट रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री में टूट रहे हैं, मेरी मिनिस्ट्री में टूट रहे हैं, मेरे ब्रदर जो कि इस वक्त दुआ में है कराची, उधर उनकी मिनिस्ट्री में टूट रहे हैं। लेकिन व्हेन दीज फोर्सेस कम टुगेदर, then there will be a mighty move in the spirit, and I can see it. And God is preparing us for that war, which we will win in the flesh, because we are running in the spirit. Since we are running in the spirit, we will win the war of the flesh, because Jesus won the war of flesh. जब उसने जिस्म की जंग जीती, तो हम क्यों नहीं जीत सकते?
हम विनर्स हैं, वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हम सिर्फ विनर्स नहीं है, वो कॉन्करर था मौत पे, और उसने कहा मैं जाता हूं, और वो जाके हमें उसने अकेला नहीं छोड़ा, उसने पाकरू छोड़ा और हमें मोर देन कॉन्करर्स बनाया। Imagine, he said, greater works will you do. Greater works. What more is than to that the blind man sees, that the deaf ear opens, and then the lame walk, and the dead come to life? What more is that? People think that more is what getting a limousine and getting a big house, $1 million house, and getting then a plane, and people are enjoying these. I'm not saying they're bad, but if you forget God and if you don't honor God with your time, and you're just honoring God with your money, thinking that I'm giving tithe, I'm giving my offering, I'm doing this, I'm doing that, and then you're not making sure that this place is holy, and then you're not offering praises to the Father, and if you're not giving your time, then you're losing time. Then you're losing time. Everyone who's not offering the sacrifice of time to God is losing time. And this life is all about time. कितनी जिंदगी है? कलाम कहता है 70 वरे भी 80 वरे, लेकिन क्या सब उस एज तक पहुंच पाते हैं? कितने लोग जो है वक्त से पहले जो है सो जाते हैं, और कुछ तो सोए नहीं, कुछ मुंह गए, कुछ सोए नहीं, कुछ मुंह गए, कुछ मुर्दा हैं, क्योंकि वो जिंदा होते हुए मुर्दा थे। कितने बच्चे सो गए और कितने बच्चे मुंह गए। इसका हिसाब किताब सिर्फ खुदावन की डायरी में है, और किताब हयात में जिसका नाम नहीं पाया जाएगा उसके साथ क्या होगा? उसके लिए आग की भट्टी जल रही है, वो तैयार नहीं हो रही, वो जल रही है और उसमें इंतजार हो रहा है। कितने लोग वहां पहुंच रहे हैं और कितने लोग खुदावंद को देखने पहुंच रहे हैं। और हमें पता है उस कहानी का भी, जहां इब्राहिम और की गोद में कौन आके बैठा था? क्या वो जिसके पास $1 मिलियन था, जिसके लाइक्स 1 मिलियन थे, जो कि बहुत मशहूर था? वो नहीं बैठा, वो नहीं बैठा। तो हमें एक दूसरे को ऊपर उठाना है, हकारत से नहीं देना देखना कि ये जो है वो छोटा है और हम जो है बड़े हैं। तो इस लिहाज से मैं पास्टर सुनील को थैंक यू कहती हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज he honors my word, he honors me, and with all his busy schedule he gives me time. I thank you so much. We will continue our praise session and the altar, and you will leave, but you will not leave in the spirit. We are together and one in the spirit. God bless you and your wife and your wonderful children and your house that is called Grace. There shall be more and more grace and glory. Thank you. Thank you so much, everybody. We are in an atmosphere of praise, in an atmosphere of anointing. And whoever wishes to offer their praises to the Father, this is the time of praise. And Uncle David and his wife wanted to praise, but Pastor Sunil came, and since he is pressed for time, he has his own ministry, so I didn't allow you. So Uncle, if you wish to praise, जो भी गीत आपके दिल में है, ज़बूर है, गीत है, वो नजराना अपनी आवाजों का खुदावंद के हजूर पेश करें। हमारी आवाज कैसी है उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे बेहतरीन आवाज तो लूसीफर की थी, वो परफेक्ट था। लेकिन हमारी आवाजें जैसी भी हों, हमारे दिलों की मानंद वो हमें ब्लेस करता है। तो प्लीज अनम्यूट करें और हम सुनेंगे कि खुदावंद आपके दिल में कौन सा गीत डाल रहा है, और हम सब रूह में एक होके उसकी सताइश करेंगे। Hallelujah. 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 सुबह हमने जो निकाला था ये था ज़बूर 145 नहायत रहीम खुदा। अच्छा ना, वो एक दफा हम गा चुके हैं, लेकिन दैट्स ओके। अगर आपके दिल में ये आया है तो जरूर आप गाएं। और हमने लाहौर से ये सुना था, अब आपके मुंह से लंदन में सुनते हैं, क्योंकि
क्या रिपीट नहीं होती? पर एक गीत खुदावंद अगर आपके दिल में ये डाला है तो उसको बताएं, आप अपने लबों से बताएं कि कितना रहीम है, वो कितना करीम है, और वो हमारा अच्छा बाप है। लेट्स हियर इट अगेन। जिन्होंने लेटर ज्वाइन किया वो फिर से इसको रूह में महसूस करें। चले, मैं जी को गाने वाला तो नहीं हूँ, पर यही मैंने कहा, गुलूकार हाँ, हमें नहीं चाहिए, हमें तो परस्तार चाहिए, क्योंकि परस्तार दिल से गाते हैं, गुलूकार जुबान से गाते ठीक हैं। है। नहायत रहीम खुदा, नहायत रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, ओ दीना उसे भी सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, रहमो दावत के है कमाल, भले आई कदा सब नाना, सब खल्क तो है निहाल, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, सब कारागरिया ऐ खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, गीत गावन तेरिया सिफतां दा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, पाक लोग जो तेरे हैं तमाम, ओ कहते लेके तेरा नाम, के तू मुबारक है खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, ओ सब तेरी बादशाही भी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, बुजुर्ग दस्ते रहंदे भी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, ओ कर दे रहंदे हैं बयान, ता सारे लोकी लैन पछान, के तेरी कुदरत दे प्यार, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, या रब बादशाही तेरी ही, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, हमेशा तिकर रहेगी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, सब लोग कानूए दस दे चा, राज पीढ़ियां तिकर रवेगा, सब खल्कते यहोवा दा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बेशक हम हर सांस से उसकी सताइश करेंगे, हम हर आवाज जो कि दिल से निकलती है उसकी सताइश के लिए, उससे सताइश करेंगे। और स्टार्स ऑफ डेविड इज ऑल अबाउट प्रेजिंग गॉड, क्योंकि उसकी फाउंडेशन में कौन सी साम है? उसकी फाउंडेशन में साम 22 है, और फाउंडेशन वर्स है साम 22:3। गॉड इज enthroned on the praises of his people. Who are his people? Who are his people? जो earlier translations है King James की, उसमें लिखा है God is enthroned on the praise of Israel. Why? Because Israel was the chosen one. Israel was taught to praise God, to not become unholy by following other gods, pagan gods. Because there was a god of fire, the god of fertility, the god of sea, the god of
the god of anything, everything. And Israel, many married others who were following pagan gods. And then what happened? They started following their gods as well. They started erecting poles, and they started bowing down to poles and stones. And they were called Asherah poles, and they started worshipping Baal. And the holy month of Baal was the 8th month. And this is all in the scripture. I'm not making this up. It is written. It is written, people. It's time we open our Bibles and not just read. We ask the Holy Spirit to open our hearts to the understanding of the word. That is what I asked. He doesn't favor me that I know more or I see more, but he favors me because I've given him time. I've given him time. I've been on my knees for hours trying to listen to him, trying to seek his face, sometimes with just silently, not saying anything, just waiting upon the Lord. And waiting upon the Lord is difficult, because if you're in a boat and there's a storm, what do you do? What do you do? We have storms in our lives. किसी की बीमारी का स्टॉर्म है, किसी की रिलेशनशिप का स्टॉर्म है, किसी के बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं. These are all storms of our lives. These are big mountains in our lives. और अगर हम इसमें रोते रहें और कहें कि खुदा हमारी सुन नहीं रहा, तो that means शायद आपको अब चुप होना है. शायद आपने बहुत बोल लिया और आप की आवाज उस तक पहुंच नहीं रही. क्योंकि कलाम में लिखा है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम तक पहुंच ना पाए, और मेरा कान भारी नहीं कि तुम्हें सुन ना सके, लेकिन तुम्हारे गुनाहों ने मुझे तुमसे दूर कर लिया. तो गुनाह हम सब करते हैं, हम सब गुनहगार हैं. कलाम कहता है all have sinned and fall short of the glory of God, period. But the fact is that we are not fallen angels कि हम फिर उसकी बादशाही में दाखिल ना हो सके. We are fallen humans. और ह्यूमन वो है जो और पाक वो है ह्यूमन जो कि गिड़गिड़ाता है, जो माफी मांगता है और फिर उस गुनाह में नहीं जाता, और अपने गुनाह आप अपने सामने ना रखे, उसको खुदा को देके, यीशु को देके भूल जाएं और फिर पाक जिंदगी गुजारे यीशु के नक्शे कदम पे. और वो आपको सरफराज करेगा, क्योंकि वो देखता है ये कब तक मेरे पीछे है. क्योंकि हमारी आदत है, मैं इंक्लूड करूंगी अपने आप को, कि हम आज गुनाह करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं, कल हम फिर वही गुनाह करते हैं. और गुनाह क्या है? गुनाह किसी का कत्ल कर देना नहीं होता कि हम तो बहुत अच्छे हैं. झूठ बोलना गुनाह है. झूठ बोलना गुनाह है. अब इमसाल की किताब उसका 6वां बाब आप पढ़ेंगे तो उसमें 7 चीजों का जिक्र है जो खुदा उनसे को जिससे नफरत है. नफरत, सोचें कि खुदा अगर किसी से नफरत करता है तो वो कौन है? खुदा शैतान से नफरत करता है, उसके लिए उसने आग तैयार की. खुदा आदम और हवा से नफरत नहीं करता. अगर उनसे नफरत करता तो उनके पीछे नहीं आता. लेकिन अब उसमें से कौन सा बीज है जो नफरत के लायक है? कौन सा बीज है जो प्यार के लायक है? वो बीज है जो कि सच्चाई की रूह रखता है. और सच्चाई एक ऐसा दामन है जिसका हमें नहीं छोड़ना चाहिए, और वो कमर बस्ता कर लें हमें सच्चाई को अपने इर्द गिर्द, अपने कमर के गिर्द. क्यों? क्योंकि जो 6 वेपन्स हैं उनमें से पहला वेपन जो हमें पहनना जरूरी है, कि हम सोल्जर्स हैं, हमने जंग जीतनी है. और हम समझते हैं, क्रिश्चियन समझते हैं, ओ यीशु मुंह गया, जंग जीत ली. ओ यीशु ने तो जीती, आप नहीं जीत सकते. आपने क्या नहीं जीतनी? आपने भी तो जीतनी है. यीशु ने तो एग्जाम्पल दी कि ऐसे जंग जीतनी है. इसका मतलब ये नहीं कि आप सूली पे चढ़ जाएं, सूली पे चढ़ के आप जंग जीतें. वो तो जिस्म की मौत होगी. रूह का क्या होगा फिर? आपकी रूह पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी. अगर आपने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया कि मैं सलीम ले ली, मैंने जिस्म को मार दिया. रूह को जिंदा होना चाहिए, और इस जिस्म को मार के जो आप जिंदा हैं, तब इस जिस्म को मार के रूह जिंदा हो सकती है. और वो रूह फिर एक प्लीजिंग अरोमा की सूरत से हम खुदा उनके तख्त तक पहुंचती है. एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, व्हेन वी लिव एज अ लिविंग सैक्रिफाइस. और 6 वेपन्स की मैं टीचिंग बच्चों को भी दे रही हूँ,
और यहाँ पे अब इस साल जो हमारी सेकेंड एनिवर्सरी हुई थी उसमें मैसेज ही पहले वेपन पे था, एंड दैट इज व्हाट, हमें फिंगर टिप्स पे होना चाहिए वेपन्स। अगर हमारे फिंगर टिप्स पे 6 वेपन्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम पहने हुए ही नहीं है, पहने हुए ही नहीं है। हम कहीं भर जाते हैं, हम कहते हैं मेरा पैंट शर्ट तैयार कर देना, मेरा शलवार कमीज तैयार कर देना। आपको नाम पता है अपने कपड़ों के, ठीक है। फिंगर टिप्स पे क्या मसीही जो हैं, जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं, उनको 6 जो वेपन्स हैं, जो वॉर के कपड़े हैं, क्या उनको नाम पता है? अगर नाम ही नहीं पता तो वो पहने कैसे हैं, वो पहनेंगे कैसे? और अगर आप पहने नहीं है तो आप तो जंग हार जाएंगे, क्योंकि आप बगैर जंग के कपड़े पहन के अगर मैदान में उतरेंगे तो शैतान आपको मात दे देगा। सलीब कुछ नहीं कर सकती। ये जो हॉरर मूवीज में दिखाते हैं कि सलीब को दिखाया और शैतान भाग गया, इट इज ऑल अ ट्रैप फॉर द फ्लैश। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपके अंदर पाकरू नहीं है तो आप 9 फुट की सलीब लेके खड़े हो जाएं, शैतान आपको पीछे से दबोच लेगा। रूह 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 कैसे आप पे काम करता है? जब आप जंग जीतते हैं, एक जंग जीतते हैं, दूसरी जंग जीतते हैं, हर जंग जिसमें आपको भेजा जाता है उसको आपको जीत के आना है। हम यीशु के वसीले हर जंग जीत सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल जंग है, चाहे वो रिलेशनशिप की जंग है, चाहे वो बीमारी की जंग है, कोई भी जंग है, आपको ऐसी कोई जंग नहीं जो कि आप जीत ना सके यीशु के नाम में, क्योंकि मैंने जंग जीती है। अगर मैं जंग जीत सकती हूँ तो क्या आप नहीं जीत सकते? क्या आप को कोई कपड़े नहीं दिए गए? और दिए गए हैं तो आप पहनते क्यों नहीं? पहन के जंग उतरे। अगर आप अपने रूटीन के सिविलियन कपड़े पहन के जंग में जाएंगे तो जाहिर सी बात है मार खाएंगे। So we will continue to learn I continue to teach, and I'm teaching children about the clothes that they need to wear. उनको अभी कोई जंग नहीं जीतनी, उनके ऊपर माँ बाप का साया है हर प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन आगे जब वो बड़े होंगे तो उन्होंने खुद जंग जीतनी, और अगर माँ बाप उनको नहीं सिखा सके तो फिर क्या होगा? वो जंग हार जाएंगे, वो जंग हार जाएंगे। वो हर दफा संडे स्कूल जाते रहे, वो गीत गाते रहे, वो अच्छे अच्छे काम करते रहे, और उनको सोल्जर के कपड़े पहनना नहीं बताया, उनको सोल्जर के हथियार नहीं बताए। और इस सोल्जर के पहनावे में, जिसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज विल जस्ट क्लोज, 6 वेपन्स है जो हमें सबको हर वक्त रेडी रहना चाहिए, बिकॉज हम हर वक्त जंग में हैं, हम सोते जागते जंग में हैं। और अगर हम जागते हुए कपड़े पहनेंगे जंग के, तो हम सोते में भी जंग जीतेंगे, हम सोते में भी जंग जीतेंगे। तो पहला सिर्फ बताऊंगी कि जो मैंने बताया, इट इज बेल्ट ऑफ ट्रूथ, कमर बस्ता हूं सच्चाई से, क्योंकि शैतान कौन है? वो लायर है। He has the spirit of lies in him. What is God? He's the spirit of truth. Who are you following? Which spirit is working in you? The spirit of lies or the spirit of truth? You need to decide. You need to check within. क्योंकि हम लोगों के सामने बहुत खूबसूरती से झूठ बोल सकते हैं। हम ऐसा मास्क पहन लेते हैं कि हम दूसरे को अपनी बोतल में उतार ले और हम बोले, वाह, हमने इसको बेवकूफ बना दिया। लेकिन जब आपको खुदावंद बेवकूफ बनाएगा तो आप जंगे हारना शुरू कर देंगे, क्योंकि जिसको बेवकूफ बनाती है दुनिया, उसका पीछा खुदावंद करता है, क्योंकि वो इनोसेंट का साथी है, वो इनोसेंट का साथी है। और इनोसेंट कौन होता है? वो कबूतर, जो कि आंख बंद कर लेता है वार होने पे। तो हमें होशियार रहना है, हमें कबूतर बनना है, लेकिन हमें होशियार रहना भी है। कलाम में लिखा है, कबूतर की मानंद मासूम और सांप की मानंद होशियार। सांप की मानंद, उसमें ये नहीं बना सांप बन जाओ और हर एक को जाके डसो। उसकी होशियारी हमने सीखनी है, ताकि हमें कबूतर समझ के लोग हमें कुचल ना दें,
और ऐसा ही हो रहा है कि जो क्योंकि कलाम में लिखा है कि अपनी दूसरी गाल भी आगे कर दे, तो क्रिश्चियंस को प्रोसिक्यूट किया जाता है, गलत अंदाज में प्रोसिक्यूट किया जाता है, इल्जाम तराशी होती है और उनको मारा जाता है, उनको जलाया जाता है। खासतौर से हमारी कंट्री पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि ब्लास्फेमी के लॉ पे उनको उनको मारा जाता है। कुछ बेचारे ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो कि यीशु को एक्सेप्ट कर, जो कि मुसलमान थे और वो यीशु को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन वो डरे बैठे हैं कि अगर हम पता चला तो हमें मार दिया जाएगा। Well, Jesus, is not scared of anybody. A Christian country has many Muslims who are converts. That was their choice. बागयदन से हमें चॉइस मिली हुई है, बागयदन से हमें चॉइस मिली हुई है। तो उसको कितने को क्रिश्चियंस जाके मार रहे हैं, उस पे कितना को क्रिश्चियन लॉ एक क्रिश्चियन कंट्री का जो है सादर हो जाता है और कहता है नहीं ये तो क्रिश्चियन था, मुसलमान हो गया है, इसको मार दो। Why? Because Christianity is not about enforcement. It is about love. और लव डंडे से नहीं करवाया जाता, लव दिल से होता है। हम दिल से यीशु से प्यार करते हैं। दैट इज वाई आई से मार दो, मार दो, क्या होगा? गुड, बिकॉज स्क्रिप्चर सेज मेरे लिए तो मरना नफा है, नुकसान नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं मरूंगा, मैं मरूंगा इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम खुदावन के बेटे कहलाते हैं जब हम रूह में चलते हैं। तो जब मैं मरूंगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। दिल बी पीस। ये जंग मैं जीत चुकी हूं, इसका मतलब ये होगा। वाई? बिकॉज ईमान से ये जंग लड़ी जाएगी, मैं ईमान से लड़ रही हूं। तो मुझे आज भी, अगर मैं, मेरी जिंदगी का अगर आज भी आखिरी दिन हो, तो मुझे कोई मलाल नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं सोऊंगी, मैं सिर्फ सोऊंगी, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि मैं यीशु में सोऊंगी और यीशु में ही उठूंगी। तो क्या ही अजीम हमारा यीशु है कि जिसने हमारे लिए जंग जीत ली और हमें सिर्फ कपड़े पहन के अब इस्तेमाल करना है। हमने सारे तौर तरीके सिखा दिए गए, और अगर हम सीखना नहीं चाहते तो इसमें हमारी फॉल्ट है, हमारी फॉल्ट है। और उन 6 वेपन्स में 5 वेपन्स ऑफ डिफेंस है। डिफेंस कहते हैं कि आप पे अटैक हो रहा है और आप प्रोटेक्टेड है, और एक वेपन ऑफ ऑफेंस है। एंड विद दिस आई विल क्लोज, बिकॉज विल कंटिन्यू एंड आई कंटिन्यू टू टीच। हो सकता है आपके लिए ये रेपिटेशन हो, जैसे मैं नए लोग आएंगे, लेकिन जो सुन रहा है वो जाने और सीखे कि ये कौन से हैं और इसको हम कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ यीशु पे हम ईमान ले आए और हम सच समझे ओह अब तो मजे ही मजे, there's grace on me. Yes, there's grace on your soul because that's saved, but that's not grace on your body. You need to win that war wearing the weapons, using the weapons and wearing them as well. So we'll close now with a um oh hallelujah. हनी, आप आए हमारे बाप गा के क्लोज कर सकते हैं? Okay, I can try this. You can try. We're not here in any competition. Can we do it in Punjabi? Is it okay with that? Because Any I do language, remember that. any language. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, है हमारे बाप तू जो आसमां पे है। तेरी मर्जी जैसे आसमां पे होती है पूरी, तेरी मर्जी आसमां पे होती है पूरी, इस जमीन पे भी हो, इस जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज दे, हमारे रोज की रोटी हमें आज दे, जिस तरह हम माफ करते हैं, जिस तरह हम माफ करते हैं, हमें भी माफ कर, हमें भी माफ कर, है मेरे खुदा, है मेरे खुदा। है हमारे बाप जो आसमान पे है, हमें आजमाइश से बचा, हमें आजमाइश से बचा, हर बुराई से बचा, हर बुराई से बचा, क्योंकि आसमान की बादशाहत, कुदरत जलाल तेरा है। आमीन, आमीन। आमीन आमीन आमीन, सब बोले आमीन Amen. Amen. Praise the आमीन Lord. आमीन। प्रेज गॉड, व्हाट एन ऑसम गॉड कि उसने हमें ये मौका दिया, ये फजल बख्शा, ये फजल है कि हम उसका नाम पाक मान सकें, क्योंकि हमारे दिलों की सरजमीन में खुदावंद यीशु का जब राज होगा तो फिर हम पाकीज़ा दिल के साथ उसको बाप कह के पुकार सकेंगे और उसकी मर्जी अपनी जिंदगियों में पूरी करेंगे। तो खुदावंद इस कलाम की और इस परस्तिश के वसीले से आपको बहुत बरकत दे, दुगनी तिगनी बरकतें दे, और जो खुदावंद और जो दिलों में आपके ख्वाहिशात हैं, जो खुदावंद की मर्जी के मुआफिक हैं, वो जल्द अज जल्द पूरी हो, क्योंकि उसका आना जल्द है और हमने उसका इस्तकबाल हवा में करना है। We are practicing till our hearts are perfect worshippers, are perfect disciples,
only then Jesus will be seen in us by the people. So shalom, shalom, shalom. Till tomorrow, because now is the time. Now is the time. And I've been told to meet every day. Even if no one is there, I will be alone. But I know there are many who stand with me to praise God, because अब सातों दिन उसके लिए एक ऑल्टर हमने बिछाना है, और वो है हमारी जमीन का ऑल्टर. उसके हजूर नजराने पेश करने हैं, और उसके लिए कलाम की ताकत दुनिया को दिखानी है कि उसके कलाम जो कि रूह की मामूरी से, रूह की इंस्पिरेशन से लिखा गया, वो कितना पावरफुल है. शैतान ने कलाम ही इस्तेमाल किया, सिंगलधारी कलाम, सिंगलधारी तलवार इस्तेमाल की, और यीशु ने भी कलाम इस्तेमाल किया. वो खुद खुदा का कलमा था, वो खुद कलाम खुदा का कलमा था. उसके मुंह के निकली बात, अल्फाज यीशु था, और उसने उसको कलाम से ही मात दिया और कहा लिखा है. सो लेट्स डिक्लेयर एवरी डे एंड से इट इज रिटन. शालोम, शालोम, शालोम. Till tomorrow. Spread peace all around you and blessings in every sphere, because we are chosen, we are blessed.